Hello everyone, I am Sumit. Welcome to my channel Let's Talk. So in today's video, I will share the topic that is quality management. So what do you mean by quality management and what is the objective of the quality management that we'll discuss. So what is the objective of the quality management? In today's session, we'll discuss about define what quality and quality consciousness are, recognize and the need for quality consciousness, ensure the quality is important to both the customer and the workers. So आज हम डिफाइन करेंगे क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंसिस्टेंस क्या है, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर क्वालिटी कंसिस्टेंस का नीड क्यों है उसको जानेंगे, एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज द क्वालिटी फॉर बोथ द कस्टमर एंड द वर्कर्स, उसके बारे में भी जानेंगे. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टुडेस लेसन. So coming to the definition, what is quality? How to define quality? So quality is fitness about producing products without any defects. अगर हम quality के बारे में बात करते हैं, that means it should be without any defects. The product should have without any defects or without any error. That means the quality signifies the fitness of the product which the producer is producing or which the manufacturer is manufacturing. So quality is a fitness about producing products without any defects. And the second thing that what quality speaks, it is also a measure of excellence on the part of the manufacturer to fulfill and go beyond user or consumer expectation. That means if the producer or the manufacturer is producing excellent product, that means it definitely satisfy the consumer expectation. कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन जो है उस हिसाब से अगर मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है या सर्विस बनाता है तो डेफिनेटली इट मैचेस विद द एक्सपेक्टेशन एंड रिपीट परचेस ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस दैट हैपेंस. नाउ कमिंग टू द व्हाट इज the I talk about the quality means it is the fitness about producing products without any defects. Now coming to the formula of the quality, so Q is equal to your quality. Q is equal to P divided by E. That means Q is equal to quality, P is equal to performance, and E is equal to your expectation. So Q is equal to P divided by E. That means quality is equal to performance divided by your expectation. If the customer is having the expectation and the performance of the product is more than the expectation of the customer, then definitely the customer, whenever the customer will purchase that product, he will be or she will be a satisfied customer because it matches with the expectation. The performance matches with the expectation, and if it exceeds, then definitely you will be more delighted, you will be more satisfied. If Q is greater than 1, then the customer will be delighted or the customer will be more satisfied customer. Now coming to quality characteristics of product and service. तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोडक्ट एंड सर्विस के बीच में, उसके बारे में जानेंगे. तो प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं. सो व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट जिसका टेंजिबिलिटी है. The product means which has the tangibility, which is tangible, मतलब जिसको हम छू सकते हैं उसको बोलेंगे प्रोडक्ट. सर्विस मीन्स जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस. So that is the major difference between product and service. So when it comes to quality characteristics, product and service is having different quality characteristics. When it comes to product, एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी का एक प्रोडक्ट है ऑल्टो. तो व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट, तो इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स: परफॉर्मेंस, रीजनेबल प्राइस, ड्यूरेबिलिटी, सेफ, ईज ऑफ यूज, रिलायबल, अवेलेबल, सर्विसेबिलिटी, मेंटेनेबल. तो मारुति सुजुकी का जो प्रोडक्ट है ऑल्टो, उसका परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी गुड बिकॉज फ्रॉम काफी सालों से कस्टमर उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं, एंड the performance is very very good and it is the most highest selling product as far as Maruti products are concerned. And next is reasonable price. उसका प्राइस बहुत मतलब अफोर्डेबल प्राइस है, तो कस्टमर अपने हिसाब से, मतलब जिसका बजट लो है वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं ऑल्टो, एंड विथ ए वेरी फ्यूल एफिशिएंसी. प्राइस के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है,
प्राइस भी अच्छा है उसका, रिजनेबल है, अफोर्डेबल है। ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट ड्यूरेबल मतलब लॉन्जिविटी कितना है, कितना दिन तक चलेगा प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट कितना दिन तक लास्ट करेगा। सो ड्यूरेबिलिटी इज वेरी वेरी वाइटल पार्ट एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न। सो मारुति के प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत दिनों तक टिकता है, चलता है। Safe, yes, definitely. I'm not saying that much safe, but comparatively it is safe. So 3 star, 4 star rating it is getting. So it is quite safe. And आजकल भी safety features, all safety features, every company is bringing. So that's why Alto is quite safe to use. Now, ease of use, कितना easy से आप उसको use कर सकते हैं, कोई hassle नहीं आएगा, कोई problem नहीं आएगा, very easy to use. So that is called ease of use. Reliable, बहुत काफी सालों से ऑल्टो मार्केट में चल रहा है, तो वेरी मच रिलायबल प्रोडक्ट, वेरी रिलायबल, कस्टमर का उसके ऊपर फेथ है, कस्टमर आंख मूंद के उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। सो वेरी मच रिलायबल। अवेलेबल, इट इज वाइडली अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री में हर एक कोने में ये अवेलेबल है। मारुति का हर एक जगह पे अपना सर्विस सेंटर है, मारुति का हर एक जगह पे अपना मतलब डीलरशिप है, तो इट इज वेरी मच अवेलेबल। सर्विसिबिलिटी, तो मारुति हमेशा सर्विस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, तो आफ्टर सेल सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट। एंड एज फार एज मारुति प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड, द सर्विस इज वेरी गुड। तो सर्विसिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है व्हेन इट कम्स टू ऑल्टो। मेंटेनेबल, इजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस का इतना खर्चा नहीं है, तो इट इज इजी टू मेंटेन as far as Alto is concerned. So these are the, I took an example of Alto just to make you understand that how the quality characteristic of product is been defined. तो अभी प्रोडक्ट के बारे में, मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट ऑल्टो के बारे में हमने डिस्कशन किया। When it comes to service, again coming to take the example of your Ola. ओला जो आपका, ओला का कार है, ओला का ऑटो है, ओला का आपका स्कूटर है, बाइक है, तो ये सब सारे सर्विस ओला प्रोवाइड करता है। सो इट इज ए सर्विस कंपनी। तो व्हेन इट कम्स टू सर्विस इंडस्ट्री और व्हेन इट कम्स टू सर्विस सेक्टर, so these are the quality characteristics that comes into count. First one is the responsiveness, next is credibility, available, reliable, understanding of customer, accuracy, courtesy, timeliness and completeness. Responsiveness मतलब when it comes to Ola, then they are very very responsive. कोई भी प्रॉब्लम आता है, ओला इज वेरी मच रेस्पॉन्सिव। मतलब जब भी आप बुक करते हो ओला का गाड़ी, तो इमिडिएटली आपको रेस्पॉन्स मैसेज चला आता है कि आपका गाड़ी बुकड हो गया है, या आपका मतलब नियरेस्ट लोकेशन आपको दिखा जाता है कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ये सारे कार्स अवेलेबल हैं, या फिर बाइक्स अवेलेबल है, या फिर ऑटो अवेलेबल है। तो वेरी मच रेस्पॉन्सिव, क्विक रेस्पॉन्स आता है। एंड क्रेडिबिलिटी, मतलब बहुत दिनों से ओला मतलब इंडियन मार्केट में रन कर रहा है, तो क्रेडिबिलिटी का कोई इशू नहीं है। द पीपल कैन रिलाई ऑन इट। बहुत काफ़ी मतलब सालों से अभी ओला चल रहा है, तो कंपनी का नेम गुडविल बहुत अच्छा है, क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी वेरी गुड। नाउ कमिंग टू अवेलेबल, Ola is very much available in metros and tier 1, tier 2 and tier 3 cities. तो availability का कोई issue नहीं है। Then reliable, definitely the customer can rely, customer can believe on this service of the Ola. Very good service. Now Ola is coming with the Ola scooter. Ola भी अभी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ले आ रहा है, तो क्योंकि ओला के ऊपर लोगों का फेथ ज़्यादा है, Ola is now a trusted brand, so that's why they have come up with some new products. Now next is understanding customer. अभी जो मैं अभी बता रहा था, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहा है, तो अभी मार्केट का जो डिमांड है उस हिसाब से अगर कस्टमर का माइंड को समझ के कंपनी अपना सर्विस को थोड़ा मतलब ज़्यादा फोकस रखे, तो डेफिनेटली द मोर एंड मोर कस्टमर विल come into the fold of the company. So accuracy, they are very much accurate on their when it comes to rendering the service, they are very much accurate. किसी भी कस्टमर को डिससेटिस्फेक्शन मिलना बहुत कम आता है, तो accuracy wise they are very much accurate. Courtesy, they always try to give courtesy to their customer, they are very friendly to the customers. And timeliness, always try to deliver on time, they always deliver their service on time. And last one is the completeness. So all these things comes, then definitely it is a completeness of the service.
So there is a comparison between Ola and the second one that is Maruti Suzuki's Alto, right? So this is called quality characteristics. Now coming to quality consciousness किसको बोलेंगे? It is nothing but a mindset to maintain high quality standard and always provide excellent customer satisfaction. तो एक माइंडसेट है, वो एक जिसको बोलते हैं एक framing of mind. It is a mindset to maintain high quality standards and always provide excellent customer satisfaction. जिस mindset के साथ आप high quality standard with excellent customer satisfaction आप provide करते हो, so that is called quality consciousness. हमेशा जब भी कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदता है, whenever the customer is purchasing a product, so definitely the first thing that comes into the mind that whether it is qualitative or not. The quality consciousness हमेशा आपको कस्टमर को देख के क्वालिटी कॉन्शियसनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसर. नाउ व्हाट आर द 3 A's फॉर क्वालिटी कॉन्शियसनेस? अब क्वालिटी कॉन्शियसनेस आप कैसे करोगे? तो पहला जो चीज आता है 3A में, पहला A आता है अवेयरनेस, दूसरा A आता है अलाइनमेंट, तीसरा A आता है अटेंशन. अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस ऑफ द क्वालिटी टू बी मेंटेन एंड नीडेड बाय द मार्केट. तो मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है मार्केट का, उस हिसाब से आप क्वालिटी कॉन्शियसनेस अगर स्प्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको अवेयर करना है कस्टमर को, एडुकेट करना है कस्टमर को. अगर आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में, तो उसके लिए आपको अवेयर करना है. यस, इफ यू आर परचेसिंग दिस प्रोडक्ट, दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट विल लास्ट फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड आप अगर कोई बंदा अगर खरीदता है हॉकिंस का प्रेशर कुकर, जिसमें क्वालिटी इज वेरी मच एश्योर्ड, तो क्वालिटी कॉन्शियसनेस हमेशा मेंटेन करता है आपका हॉकिंस. तो अगर एक प्रोडक्ट आप परचेस करते हो तो बहुत सालों तक चलता है, क्वालिटी का कोई इशू नहीं रहता. कोई भी मतलब किसी भी समय पर कोई मतलब जैसे कुकर प्रेशर ज़्यादा रह जाता है तो कुकर हवा में उड़ जाता है, तो इस तरह का इशू नहीं आता. तो पहला जो चीज आता है दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस. दूसरा चीज आता है अलाइनमेंट ऑफ ऑल वर्क प्रोसेस टू मेंटेन क्वालिटी. मतलब एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाने में हर एक वर्क फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है. तो अगर कंपनी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो अगर हर एक डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा. वेदर इट कम्स टू quality check, or whether it is the production department, or whether it is the sales department, every department, every workforce has to ensure the quality. Then only the quality consciousness can be maintained. Now coming to the next one, the third one, that is the attention to details which will ensure quality and consistency. Attention क्या है? मतलब हमेशा जो भी आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाते हो, हमेशा इंश्योर करो कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो हमेशा क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर 24/7. वो आप हमेशा बरकरार रखना, तभी मार्केट में कंपनी का गुडविल अच्छा बनेगा और कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा. जितना ज़्यादा कस्टमर होगा, जितना ज़्यादा आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करोगे, उतना ज़्यादा कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेस करेगा, और जितना ज़्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा उतना आपका ज़्यादा सेल्स होगा और आपका ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा. ओके, क्वालिटी कॉन्शियसनेस हेल्प टू डिलीवर वैल्यू टू योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू. मतलब ये कंपनी, मतलब जो भी प्रोडक्ट कस्टमर खरीदता है, अगर अच्छा प्रोडक्ट खरीदता है, अगर आप एक वानुशन की शर्ट खरीदते हो, तो दैट मीन्स इट ऐड वैल्यूज टू योर पर्सनैलिटी. And when the producer is producing the qualitative product, definitely it add values to the company because the customer is satisfied. Ultimately, when the customer is very much satisfied, then definitely he will come and or she will purchase another product. The repeat purchase will happen. So in both the way, the customer and the company gains, right? And the second thing, become aware of quality standards and the true meaning of the excellence for you and for the organization you work in. So whenever you are thinking about quality, always maintain the quality standard. Always meet and beat the excellence. Then only organization will grow. When the organization will grow, that definitely you will grow.
तो विच एवर द कंपनी दैट मेंटेन्स ए क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी कंपनी आज के डेट में क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो कंपनी आगे चल के डूब जाता है। जो कंपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो कंपनी हमेशा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाता है, वो कंपनी बहुत आगे तक जाता है, राइट। नेक्स्ट इज अलाइन योरसेल्फ पर्सनली एंड प्रोफेशनली विथ योर गोल्स एंड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाना, हमेशा उसके ऊपर, अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, हमेशा कंपनी का जो गोल है आपका गोल समझ के आपको उसको फुलफिल करना है। देयर इज नो, you don't have to compromise on the quality of the product when you are working as an employee in an organization, in no way. Focus your attention on the essentials. So always focus on the deliverable, always focus on the quality, how the qualitative products can be made and it can be maintained. So this is all about today's session. So in the today's session we discussed about the quality management, and in the coming days we'll talk about something more about this.